उतारं रत्नघातम सर्वप्रथमे यही अग्निदेव रूपी आत्मदेव को स्तुति करी आज सत्संग पढ़ा जाऊँगी। सत्संग सभापति वरिष्ठ योगी मुनिरत्न दुराचार्य मुनिवर ध्रुव मुनि महोदय, उपस्थित समस्त योगी मुनि मुनिमती मुनिकुमार मुनिकुमारी आत्मज्ञान विज्ञान समस्त आत्मा आज दासरथी भाई नाती सान नाती होती तेणु से आम समस्त को घर को व्यापी ये आशीर्वाद सभा करने से पुत्रटी की आम समस्त आशीर्वाद करवा तार भविष्य उज्जवल हो, तार चलापथ कुसुमित हो, से बुद्धि विद्या निपुण हो, आयु आरोग्य लाभ करू, परिशेष से आत्मज्ञानी जीवन मुक्त हो। आज मोर आशीर्वाद दरकार जहाँ हो आम संसार सबुठार जदि किसी मूल्यवान वस्तु जन को पचार भाई संसार सबुठार मूल्यवान वस्तु कौन किए कह सोना रूपा हीरा नीला इत्यादि किंतु से सोना जाने के मो मूल्यवान वस्तु से सुना जाने के मो सुना करी हीरा जाने के मो हीरा करी मोर मूल्य एते से जानना कहीं से जड़ जड़ किसी जानी पारना तो तार मूल्य कहीं प्रथम जो मंत्र आवृत कली जो अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञ स्वरूप देवमुद्रित भूतार रत्न धातु ये जो रत्न जिते मूल्यवान धातु अच्छी मनीष ही अलंकार करना मनीष तुलन धातुर उत्पादन कम है तार मूल्य अधिका कहीं लुहार मूल्य तो इतने लुहा सफिशिएंट मिलूँ तार मूल्य कम सुनार मूल्य बढ़िबार कारण ताको आम जी आवश्यक ता कम परिमाण अच्छी जदि से धान भाई अमल होता तार मूल्य एत भंगा नुह तेणु से सुनार मूल्य सुना जाने ना जाने किए जी मूल्यांकन करुच्ची से ही जाने सुनार मूल्य तेणु सबुठार मूल्यवान किए जी मूल्यांकन करुच्ची अर्थात मनीष मनीष सुना हीरा ठार मूल्यवान वस्तु ये मनीष रोजगार करी सुना रूपा हीरा लीला कर देह असुस्थ होती सुना रूपा को भांगी बिकी देह को भल कर ये देहटा सुनाटा आहरी मूल्यवान भागवत गोटे पद अच्छी ये देह थिले सर्वपाई जले देश में चंद्र छाई यदि आकाश रे चंद्र नथिबो ताले आपण पानी रे चंद्र छाई देखिपारे ये देह थिबा पर्यंत आपण धन रोजगार करथिबे यदि देह नष्ट हो गला यदि देह रुग्ण हो गला आपण धन रोजगार कर पाइबे तेणु से धन को बिकी सुना रूपा को बिकी देह को आम
ସୁସ୍ଥ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ତ ଖାଲି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମଣିଷ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏ ସମାଜ ଈଶ୍ୱର 9ଟି ଅବତାରକୁ ମାନି ନେଇଛି। କଣ ନା ମୀନ କାଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ କୃଷ୍ଣ, ବୁଧ। এই 9টা ଅବତାରକୁ ମାନି ନେଇଛି। ଏ 9 ଅବତାର ଦେଖିବା କିଏ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ମାସରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବତାର ହେବେ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବତାର ହେବେ। ବେଦର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏସହ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ସର୍ବା ପୂର୍ବାହାଜାତ ସୌଦାଗନ୍ତ ସ୍ୱୟଂଜାତ ସଦନିଶ୍ଚମାନ ପ୍ରତ୍ୟଂ ଜନାତିଷ୍ଠତି ସର୍ବତୋମୁଖ। ଏସହ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ଏସହ ଦେବ ପ୍ରଦିଶୋ ସର୍ବା। ଦିଶ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ପ୍ରଦିଶ କହିଲେ ସବୁ ଦିଗ, ଅନୁପାତରେ ପଛରେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସବୁ ଦିଗର ପଛରେ ଅଛି। ପ୍ରଦିଶୋ ସର୍ବା, ସେ ପୂର୍ବାହଜାତ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି। ସ୍ୱୟଂଜାତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ସଦନିଶ୍ଚୟମାନ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ହବ। ପୂର୍ବାହଜାତ ସଗର୍ଭତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଏ ସଂସାର ମାନୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି? ସେ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱର, ତା ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଯୋଉ ସବୁ ଦିଗର ପଛରେ এই যে 10 দিগକୁ ମାନି ଯାଇଛି, ଯେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧ, ବୁଧ, ବାୟୁ, ଦୈତ, ଅଶ୍ବିନ, ଅଗ୍ନି, এই 10 ଦିଗର ପଛରେ ଯିଏ, ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ପୂର୍ବ ଦିଗଟା କୋଉଠି, କାହାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଗେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବତେଇବେ। ତେଣୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଦିଗର ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ଦିଗର ପଛରେ। ବେଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସର୍ବତ ସ୍ମୃତ୍ୱା ତ୍ରଣିଥର ଦଶାଙ୍ଗ। এই ଦଶାଙ୍ଗ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଦଶାଙ୍ଗକୁ ବୁଝିଗଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଦଶାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି 10 ଦିଗକୁ ସୁଝେଇଛି। 10 ଦିଗର ପଛରେ ସେ ହଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ କହୁଛି ବା ମୋ ଠାରୁ ଆଡକୁ ପୂର୍ବ, ଆଡକୁ ପଶ୍ଚିମ, ଆଡକୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଆଡକୁ ଉତ୍ତର, ଆଡକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଡକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ, ସେମିତି ଆଉ ଚାରିକୋଣ, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଦିଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ଦିଗର ପଛରେ, ମୁଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର। এই ଯୋଉ 9ଟା ଅବତାରକୁ ମାନି ନିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ମଣିଷ ଏ 9ଟା ଅବତାର ହଉଛି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ତଦେବ ଅଗ୍ନି ତଦାଦିତ୍ୟ ତଦବାୟୁ ତଦଚନ୍ଦ୍ରମା ତଦ ଶୁକ୍ର ତଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାପସ ପ୍ରଜାପତି। ତଦେବ ଅଗ୍ନି, ସେଇ ହଉଛି ଅଗ୍ନି, ତଦବାୟୁ ସେଇ ବାୟୁ, ତତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଶୁକ୍ର, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଶୁକ୍ର ଯାଏ, ସେ
मीन भली से संतरण करे। तेणु से समयटा को मीन अवतार कहुए। जिते से क्रमे कलेवर बुद्धि करे किए करे निजे तार कलेवर को बुद्धि करे। आम दशमंत कहले तोते जो विधानी कला निर्माण से तो देह रहा तुम जान। तेणु से शरीर रही कलेवर को बुद्धि कर जिते बड़ हो जाए से मातृगर्भ से कईछ भाया से गर्भ भितर संतरण कर कईछ अवतार कह। जिते बड़े सी आउ टे बड़ हो 7-8 मास 9 मास बेलू मातृगर्भ से महाप्रति मुंडिया मारे जो पाँच बराह अवतार आप विचार करूँ। बराह अवतार ठिया पृथ्वी की टेकिले ठिया मातृगर्भ से बराह अवतार जो से नरसिंह अवतार होती ये मातृगर्भ को विदारण करी से धरापृष्ठ आसे से अवतार को नरसिंह अवतार कहीं कहुए ना अधा पशु अधा नर परी से अवतार को नरसिंह अवतार कहुए। केमिति अधा पशु अधा नर ना मनुष्य शरीर किंतु सिंह परी लोमयुक्त शरीर मनुष्य शरीर किंतु जिते से हमले की चलवा आरंभ करे 2 गोड़ 2 हाथ 4 गोड़ करके चले जमी सिंह 4 गोड़ से मनुष्य किंतु कहार की भय करे ना जमी बनर सिंह बनर राजा से कहार की भय करे ना से जिते बड़े कहा काखरे थाए कहा कोले थाए यदि गाड़िया लोक होता गाड़ी टाइम तो कहे पेट्रोल लोक पेट्रोल मारे डाले मारे कहा भय करे ना कहीं सिंह कहा भय करे जमी सिंह तार भाव प्रकाश करने बने कौन करे ना गर्जन करे पिलाटी भोक लगे कि जंदा की पिंपुड़ी कामुड़े भाव प्रकाश करने से कांदी थाए माँ आसी कहे मो पिला को भात कला कि कौन असुविधा से भाव को क्रंदन माध्यम प्रकाश करे। बनर सिंह जो भाई अन्य पशु मान मारी तार रक्त पी थाए ये पिलाटी रक्त तैयारी क्षीर खाई बनर सिंह जो अन्य पशु मान कामुड़ी क्षत विक्षत करे बेले बेले छोट पिलाटी क्षीर खाइला माँ को कामुड़ी पकई थाए। सिंह लक्षण नर ठारे देखा से अवतार को नरसिंह अवतार कहुए। समाज प्रति नरसिंह अवतार गोटे स्तंभ बाहर